السلام علیکم، دس از سنیلا پارس اینڈ ویلکم ٹو دی پارس مینٹورز۔ 28 جون 1971 کو ایک بچہ پریٹوریا ٹرانسوال جنوبی افریقہ میں ایسپرجر سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوا، جو کہ آٹزم کی ایک قسم ہے۔ اس کے والد ایک جنوبی افریقی انجینئر تھے، جبکہ ماں کینیڈا کی ماڈل اور نیوٹریشنسٹ تھی۔ 1980 میں اس کے والدین کی طلاق کے بعد وہ بچہ اپنے والد کے ساتھ رہنے لگا۔ بڑے ہو کر اس بچے نے اپنے والد کو ٹیریبل ہیومن بینگ قرار دیا، یعنی ایک خوفناک انسان۔ اس کا کہنا ہے کہ میری پرورش بہت ہی خوفناک ماحول میں ہوئی ہے، مجھے بڑے ہونے میں بہت ہی مشکلات درپیش آئیں۔ ایک چیز جس کے بارے میں میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بچوں کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، جیسا کہ اس وقت وہ ایک لمبا 51 سالہ نوجوان ہے جس کے 10 بچے ہیں۔ بات گھریلو مسائل تک ختم نہیں ہوتی۔ اس آٹزم کے شکار بچے نے اسکول کی زندگی بھی بہت مشکلات سے گزاری ہے۔ اس آٹسٹک لڑکے نے ایک پرائیویٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں پریٹوریا ہائی اسکول سے گریجویشن کی، مگر وہ ایک خود ساختہ کتابی کیڑا ہی رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا مشکل تھا، اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ بچہ بلنگ کا شکار بھی رہا۔ جی ہاں، ایک مرتبہ بلیز یعنی اسٹوڈنٹس نما گنڈوں نے اسے اتنا پیٹا کہ وہ ہسپتال تک پہنچ گیا۔ گنڈوں نے اسے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا اور اسے اتنا مارا یہاں تک کہ وہ سیاہ پڑ گیا۔ مگر اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس ڈیپ اور آئسولیٹڈ مفکر نے کمپیوٹر اور انٹرپرینورشپ کے لیے ابتدائی ہنر کا مظاہرہ کیا۔ 12 سال کی کم عمری میں ہی اس بچے نے خود سے کوڈنگ سیکھ لی۔ جی ہاں، اس بچے نے اپنا پہلا بلاسٹر گیم بنا ڈالا اور اس وقت اس نے اس گیم کو تقریباً $500 میں ایک کمپیوٹر میگزین کو فروخت کیا۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ مڈل کلاس آٹسٹک بلیٹ مگر ذہین لڑکے کا آج کیسا ہے؟ جی تو اس لڑکے کی 16 دسمبر 2022 کے مطابق مجموعی مالیت $169.1 بلین ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک کی، none other than the ایلان ریو مسک۔ یہ شخص زمین سے لے کر پوری خلا میں گھومنا چاہتا تھا اور اس نے واقعی کر دکھایا۔ گاڑیوں اور ٹرینوں کو نئی ٹیکنالوجی کے مطابق ڈھالنے کے ساتھ ساتھ یہ شخص آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل میں موجود ایپس کا بادشاہ بن چکا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ایلان مسک اور اس کے حیرت انگیز کارناموں کے بارے میں۔ But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. مسک نے 1997 میں یونیورسٹی آف پینسلوانیا سے فزکس اور اکنامکس سے بیچلرز کیا۔ اس کے بعد گریجویشن کے لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی ان کیلیفورنیا میں داخلہ لیا، مگر 2 ہی دن کے بعد وہاں سے چلا آیا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ فزکس کی بجائے انٹرنیٹ زیادہ طاقت رکھتا ہے کہ معاشرے کو تبدیل کر سکے۔ 1995 میں زپ2 کمپنی کی بنیاد رکھی، جو کہ 1999 میں ایک کمپیوٹر بنانے والی کمپیکٹ کمپنی نے $360 ملین میں خرید لی۔ یہ تھا ایلان مسک کا بلینئر بننے کی طرف پہلا قدم۔ پے پال کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایکچولی مسک نے X.com نامی کمپنی بنائی جو کہ بعد میں پے پال بن گئی۔ یہ دنیا کا معروف انٹرنیٹ پیمنٹ سسٹم ہے جس سے آن لائن رقم منتقل کی جاتی ہے۔ 2002 میں ایک آکشن میں ای بے نے پے پال کو $1.5 بلین میں خرید لیا۔ اب ایلان مسک کی واسٹ تھنکنگ کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسک ہمیشہ سے اس بات پر قائل تھا کہ زندگی کی بقا کے لیے انسانیت کو ملٹی پلانٹ اسپیشی بننا ہوگا۔ مسک اس محاذ پر ڈٹا ہوا تھا، مگر وہ چاہتا یہ تھا کہ راکٹ کو لانچ کرنے میں اخراجات کم کیے جائیں، بیکاز یہ سب بہت ایکسپینسو تھا کہ امیر آدمی کی بھی اس تک رسائی نہیں تھی۔ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مسک نے اسپیس ایکسپلوریشن ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی جس کا نام اسپیس ایکس رکھا گیا۔ اس نے 2 راکٹ فالکن 1 اور فالکن 9 2006 اور 2010 میں باری باری لانچ کیے اور ان کا ڈیزائن ایسا تھا کہ لاگت بہت کم آئی۔ 2000
2018 में फैल्कन हैवी नामी तीसरा रॉकेट लॉन्च किया गया, जो कि 53,000 kg वजन को ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो इसके सबसे बड़े हरीफ बोइंग कंपनी के डेल्टा 4 हैवी से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। जबकि कॉस्ट फैल्कन हैवी की इस रॉकेट के मुकाबले 1/3 कम रही, यानी मस्क का ये रॉकेट इंतहाई सक्सेसफुल रहा। मगर मस्क यहाँ तक नहीं रुका, अगला स्टेप और भी ज्यादा चैलेंजिंग था। जी हाँ, स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी के सक्सेसर सुपर हैवी स्टारशिप सिस्टम का ऐलान कर दिया। ये कोई आम रॉकेट नहीं था, बल्कि पूरा एक स्टारशिप सिस्टम था। सुपर हैवी का पहला मरहला 1,00,000 किलो वजन को लो अर्थ ऑर्बिट तक उठाना था, और ये वजन दरअसल स्टारशिप का ही था, जो कि एक स्पेसक्राफ्ट थी जिसे जमीन पर शहरों के दरमियान तेज रफ्तार नकलो हमल फराहम करने और चांद और मरीख पर अड्डे बनाने के लिए डिजाइन किया गया। स्पेसएक्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी तैयार किया, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को चीजें सप्लाई करता है। फाइनली 2020 में सुपर हैवी स्टारशिप सिस्टम की पहली फ्लाइट टेस्ट की गई। इन इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स के बाद स्पेसएक्स स्टारलिंक डेवलप कर रही है, और ये स्टारलिंक ऐसी जगहों पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी जहां पर इंटरनेट की रसाई नाकाबिले इत्तबार है, या महंगी है, या मुयस्सर ही नहीं। सो इट्स गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल मूव बाय इलॉन मस्क। इलॉन मस्क स्पेसएक्स का सिर्फ सीईओ ही नहीं, बल्कि फैल्कन रॉकेट्स, ड्रैगन और स्टारशिप का चीफ डिजाइनर भी है। स्पेस के अलावा इलॉन मस्क का अर्थ को स्पीड अप करने का जुनून भी बहुत बुलंद था, जिसकी बदौलत मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने के इम्कानात के बारे में सोचते सोचते टेस्ला मोटर्स को ज्वाइन कर लिया, जिसे बाद में टेस्ला का नाम दे दिया गया। ये एक ऐसी कंपनी थी जो बिजली से चलने वाली कारें बनाती थी। टेस्ला का मिशन था कि दुनिया को साफ और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुंतकिल किया जाए। मस्क की सुपरविजन में 2006 में टेस्ला ने अपनी पहली कार रोडस्टर मुतारिफ कराई, जो कि सिर्फ एक चार्ज में 245 मील सफर कर सकती है। ये एक स्पोर्ट्स कार थी जो कि 4 सेकंड से भी कम वक्त में 0 से 60 मील फी घंटा की रफ्तार से चल सकती थी। मॉडल एस सीडान एंड मॉडल एक्स लग्जरी एसयूवी के बाद मॉडल 3 एक कम महंगी गाड़ी थी, जो कि 2017 में तैयार हुई और अब तक की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई, जो कि 320 मील से ज्यादा की रेंज प्रोवाइड करने वाली एक मैस मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल थी। अगले आने वाली गाड़ी टेस्ला सेमी का मकसद और भी बड़ा था। जी हाँ, इसे इसलिए डिजाइन किया गया कि ओनर को फ्यूल की मद में कम से कम $2 लाख की बचत दे सके। गाड़ियों के साथ साथ 2019 में टेस्ला ने साइबर ट्रक भी बनाना शुरू कर दिए, जो कि रवायती ट्रक के मुकाबले में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। स्पेसएक्स की तरह इलॉन मस्क टेस्ला का भी सीईओ ही नहीं, बल्कि प्रोडक्ट डिजाइनर और इंजीनियर भी है। टेस्ला से मस्क का जी नहीं भरा था, उसने एक कंपनी बना डाली जो कि आवाज से भी ज्यादा स्पीड पर काम करने लगी, दी बोरिंग कंपनी। कैलिफोर्निया में स्टार्ट होने वाली हाई स्पीड रेलवे सिस्टम की प्रोजेक्टेड कॉस्ट, जो कि $68 बिलियन थी, उससे मुतमिन ना होने की वजह से 2013 में मस्क ने उसका मुतबादल और तेज तरीन सिस्टम हाइपरलूप का तस्वर पेश किया। मस्क का कहना था कि ये एक न्यूमेटिक ट्यूब की मानद है, जिसमें 28 मुसाफिरों को ले जाने के लिए पॉड 350 मील का सफर सिर्फ 35 मिनट में तय करेगी। और अगर बात करें आप स्पीड की, तो वो 760 मील फी घंटा होगी, जो कि वाकई आवाज की स्पीड के बहुत करीब है। मस्क ने ये दावा किया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट सिर्फ $6 बिलियन आएगी और औसतन हर 2 मिनट बाद पॉड रवाना होंगे, जो कि 6 मिलियन लोगों को अकोमोडेट करेंगे। सो स्पीडी। इलॉन मस्क स्पेस और अर्थ के अलावा आपके दिमागों को भी स्पीड अप करना चाहता है। जी हाँ, इलॉन मस्क न्यूरालिंक नामी कंपनी का भी सीईओ है, जो कि इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ मशीन इंटरफेस तैयार कर रहा है। और हाँ, ट्विटर और इलॉन मस्क के बारे में रिसेंटली यकीनन आप सबने सुन रखा होगा। इसमें भी स्पीड फैक्टर इन्वॉल्व है भाई, मगर कैसे?
मस्क ने ट्विटर, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक सोशल मीडिया सर्विस है, उसे 2009 में @Elon Musk यूजर नेम से ज्वाइन किया और 85 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 2022 में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला अकाउंट बन गया। अप्रैल 2022 के शुरू में धूम मच गई कि इस मोस्ट फॉलोड यूजर ने 9.1% कंपनी खरीद ली है। इसी महीने में इस ऑनर के 9.1% शेयर डिस्क्लोज करने की धमकी के पेश नजर ट्विटर बोर्ड ने इस कंपनी को $44 बिलियन में मस्क को बेच डाला और अब इलॉन मस्क एक अंदाजे के मुताबिक 74% कंपनी का मालिक बन चुका है। तो देखा आपने मस्क यहाँ भी कैसे स्पीडीली एक आम यूजर से उस कंपनी का एक पावर्ड ऑनर बन गया। मगर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। हो सकता है मिस्टर मस्क के जहन में ट्विटर और न्यूरालिंक के दरमियान कोई ताल्लुक हो जो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान डायरेक्ट लिंक पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब यकीनन ये सोच रहे होंगे कि वेयर ऑन द अर्थ डज ट्विटर फिट इन। हो सकता है ट्विटर उसकी तहकीक का हिस्सा हो और उसने 300 मिलियन लोगों का एक जिंदा सांस लेने वाला न्यूरल नेटवर्क खरीदा हो जो अपनी लाइफ्स और ओपिनियंस को ऑनलाइन शेयर कर रहे हों। वेल, ऑल दीज आर साइंस फिक्शंस। आप यकीनन जानते हैं कि फलदार दरख्त अक्सर पत्थर खाता है। इसी तरह इलॉन मस्क जैसे इंसान को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इलॉन मस्क का मार्स पर जाने वाला मंसूबा महज एक फलसफा है जो सिर्फ बिलियनर्स पर लागू होता है। कुछ लोग ट्विटर से पैदा होने वाले तनाज़ों के पेश नजर भी मस्क को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एंड करंटली ही लॉस्ट हिज टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। मगर क्यों और आगे मस्क के साथ क्या होने वाला है? इलॉन मस्क आज की डेट में वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन का क्राउन खो चुके हैं। जी हाँ, मस्क फ्रांस के बर्नार्ड आर्नॉल्ड के हाथों अपनी पोजीशन खो बैठे हैं। मगर उसकी वजह क्या थी? दरअसल ये उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के गिरने वाले शेयर्स की बदौलत हुआ। जब से मस्क ने ट्विटर के लिए अप्रैल में होने वाली बोली लगाई, तब से टेस्ला को आधी से ज्यादा मार्केट वैल्यू का नुकसान उठाना पड़ा। इन सब की बदौलत अब इलॉन मस्क की टोटल नेटवर्थ $177 बिलियन है, जबकि बर्नार्ड आर्नॉल्ड की $188 बिलियन है। इस फॉल डाउन की वजह से उनके इन्वेस्टर्स भी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। बट नो वरीज बिकॉज ही इज अ हार्ड वर्कर। इलॉन मस्क का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से जरूर था, मगर वो एक मेहनती शख्स है, इतना कि वो 100% से कम कमिटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हर किसी को गलत साबित करने में डट जाता है जब उससे कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। इसीलिए इसे एक फिनोमिनल हार्ड वर्कर के तौर पर जाना जाता है। और आखिर में इलॉन मस्क की एक क्विट है, मैं नहीं समझ कि किसी को किसी का बॉस होना चाहिए, लेकिन मुझे टेक्निकल या प्रोडक्ट डिजाइन के मसाइल हल करने में मदद करना पसंद है। मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।